Very good evening, friends. Today we are here to discuss some of the case laws on this Supreme Court and High Court. I have already made some people as co-hosts so they can keep on adding people. We already saw, I think, 10 cases. 10 cases we already discussed. Now we are on 11th case. I think we had discussed this also. But anyway, we can start from this. Anuj Jain. Anuj Jain, IRP for JP Infratech versus Axis Bank Limited. So in this, actually होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, particularly these construction companies, they form a web of companies. Land bank is in one company, operations are in some other company, some companies are subservient to others. So this is the process they run. So in this matter, JP Infratech had mortgaged some land owned by it. So JP Infratech was owning a land bank, and they had mortgaged some land owned by it in favor of the lenders of its holding company, Jayaprakash Associates. So JP Infratech was subsidiary, Jayaprakash Associates was the holding company, and the land bank which was owned by JP Infratech, out of that they mortgaged some of the lands in favor of the lenders of its holding company. Now, CIRP of this JP Infratech started. So IRP filed an application for reversal of the mortgages because IRP is required to take control of the assets. So when he found that some of the lands belonging to the JP Infratech, which is under CIRP now, has been mortgaged in favor of some of the lenders of its holding company, they filed an application for reversal of the mortgages, claiming that the such transaction is a preference. So they filed an application under this avoidance transactions. So it is a preferential, undervalued, fraudulent transaction. Adjudicating authority allowed the application, directing the lenders of Jayaprakash Associates Limited to transfer the land bank to JP Infratech Limited. But the order of the adjudicating authority, because naturally there are two parties, so if some party feels aggrieved by an order of the NCLT, they will naturally approach the NCLT. So this order of the adjudicating authority, which directed the lenders of Jayaprakash Associates to transfer the land bank to JP Infratech Limited, which had gone into CIRP, this order was set aside by NCLT. And the RP of JP Infratech Limited filed an appeal before the Supreme Court. So now we are reading the Supreme Court. Supreme Court allowed the appeal of the IRP, holding that the mortgage transaction was a preferential transaction. So the Supreme Court held as under. First, the orders under section 44. Under section 44, the adjudicating authority may pass orders to reverse the effect of an offending preferential transaction. Amongst others, the adjudicating authority may require any property transferred in connection with giving of preference to be vested in the CD, which was in this case JP Infratech Limited. It may also release or discharge wholly or in part any security interest created by the CD. The consequences of offending preferential transactions are obviously drastic and practically operate towards annulling the effect of such transactions. Another point which came in this was the look back period. Now, one of the party raised an objection कि भाई ये जो अपना IBC कोड आया है ये तो 1 दिसंबर से आया है। अब 1 दिसंबर के बाद में आप कहते हो कि जी रिलेटेड पार्टी के साथ में आपको 2 साल देखना है ट्रांजैक्शन को, तो 2 साल का मतलब ये 2 साल बाद ऑपरेटिव होना चाहिए ये वाला प्रोविजन, है ना। अगर मान लो 17 में किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो इसका मतलब तो आप IBC से भी पीछे पहुंच गए, आप तो 15 में पहुंच जाओगे 2 साल में। तो दिस वॉज ऑल्सो एन एंगल which was deliberated upon in this case. तो look back period. So वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि if the twin conditions specified in subsection 2 of section 43 are satisfied, the transaction would be deemed to be of preference. ठीक है. However, merely giving of the preference and putting the beneficiary in a better position is not enough. ठीक है. तो और क्या है,
और ये ट्रांजैक्शन ये है कि अनदर एसेंशियल एंड प्राइम रिक्वायरमेंट इज दैट द इवेंट ऑफ गिविंग प्रेफरेंस हैपेंड विद इन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, रेफर टू एज द रेलेवेंट टाइम। तो रेलेवेंट टाइम वहां पर है, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज में 2 साल है, अनरिलेटेड में 1 साल है, तो हमें मालूम है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट सेक्शन 43 वुड कम इनटू ऑपरेशन एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द आईबीसी, else it would be giving retrospective effect to these provisions, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो लुक बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द प्रोविजंस, इफ ए लुक बैक पीरियड इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंक्वायरी, it cannot be said that the operation of the provision itself would remain in hibernation until such look back period from the date of commencement of the provisions comes to end। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा नहीं है कि हमें 2 साल या 1 साल वेट करना है इस आईबीसी आने के बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब तो वो प्रोविजन ही इनइफेक्टिव रहेगा तब तक, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जैसे अगर 1 दिसंबर से आ गया तो अगर हमारे कोई 17 में भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे 16 में ही ट्रांजैक्शन होती है, तो भी 2 साल पीछे हम जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई आईबीसी उस टाइम तो था ही नहीं। तो इशू क्या आ गया? इशू इसमें ये आ गया, पहला तो ये आ गया कि वेदर ट्रांजैक्शंस आर लायबल टू बी अवॉइडेड बीइंग प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड एंड फ्रॉडुलेंट, ठीक है। उसके बाद में एक और पॉइंट आया इसमें, जो जयप्रकाश एसोसिएट्स के लेंडर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप कह रहे हो कि हमने हमारे पास जो मॉर्गेज लैंड है वो वापस कर दो जेपी इंफ्राटेक को, तो हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर बना लो उस कंपनी के, ठीक है, क्योंकि एज लोन गिवन टू जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड वर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेपी इंफ्राटेक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नहीं माना। उन्होंने कहा भाई आपको कैसे हम फाइनेंशियल क्रेडिटर उस कंपनी के बना लेंगे जेपी इंफ्राटेक के, ये भी नहीं, आपको मॉर्गेज भी वापस करनी पड़ेगी और आप उस कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं बनोगे, ठीक है। अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस बीइंग प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड एंड फ्रॉडुलेंट, तो कब ये ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये तो आपने पढ़ा, ये तो प्रोविजन है 43 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रेफरेंशियल कब मान ली जाती है कि अगर उसमें अल्टरेशन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होता है एज पर द वाटरफॉल मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन 53, ठीक है। रिलेटेड पार्टी में 2 साल है और अदर्स में ये 1 साल है। लेकिन अगर इफ देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड व्हिच रिजल्ट इन प्रोविजन ऑफ न्यू वैल्यू टू सीडी। न्यू वैल्यू टू सीडी का क्या मतलब है? न्यू वैल्यू टू सीडी का मतलब ये है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई नया फाइनेंस आ गया, ठीक है ना। नए फाइनेंस में तो वो सिक्योरिटी देगा ना, तो नए फाइनेंस में अगर सिक्योरिटी दी है उसने तो कोई दिक्कत नहीं, नई वैल्यू ऐड हो रही ना, पुराने पर नहीं चेंज कर सकते। मान लो कोई अनसिक्योर्ड लोन है, ऐसा नहीं कर सकते कि उसको सिक्योर्ड बना दे, ठीक है, या सिक्योर्ड में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी। लेकिन अगर मान लो कोई नया इंटरिम फाइनेंस रेज किया तो उसके ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन प्रोविजन ऑफ न्यू वैल्यू टू द सीडी, ये मतलब है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन एनालाइजिंग प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंटेंट ऑफ द पार्टीज फॉर असर्टेनिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इज इमैटेरियल। तो क्या इंटेंट थी उस पे कोई आप, वो इमैटेरियल है, ठीक है। ये बात आ गई कि भाई जो लेंडर्स हैं जेपी एसोसिएट्स के, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लेंगे फॉर लोन गिवन टू जेएल ऑन द इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सीडी है, सीडी इसमें कौन था? जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो जेपी इंफ्राटेक ने तो कुछ नहीं देना, सीडी डज नॉट ओ डेट्स टू द लेंडर्स ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, ठीक है ना। और जो क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, दे शैल बी आइदर प्रिंसिपल डेटर या असाइनी हो, ठीक है। ना तो ये प्रिंसिपल डेटर है ना ये असाइनी है, ठीक है। सिंस थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर आर ओनली इंटरेस्टेड इन रियलाइजिंग, भाई इनका क्या मतलब है? ये तो सोचेंगे यार कंपनी को बेच बाच के जो करो, इनको कोई कंपनी से कोई वो तो होगा नहीं कि भाई कंपनी का रेजोल्यूशन हो। सिंस थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर आर ओनली इंटरेस्टेड इन रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड नॉट कंसर्न्ड विद द रिवाइवल ऑफ सीडी, ठीक है ना। तो इनको हम इंक्लूड इसमें नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो कोड का है वो डिफीट हो जाएगा इफ इट इज अलाउड, ठीक है। तो ये 10th था हमारा। इसमें अगर कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस केस में, या आगे चले। अगला केस देखते हैं 11th, ठीक है। अब आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई टेक्स्ट चाहिए कंप्लीट, तो कंप्लीट टेक्स्ट भी हमारे पास है। हमने तो पूरे केस लॉ पढ़े हुए हैं,
तो कंप्लीट टेक्स्ट भी अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में इसलिए नहीं शेयर करता, बेकार में इतनी ज़्यादा शेयरिंग की जरूरत नहीं है भाई। 60 केस लॉज है, कहाँ कहाँ शेयर करें। अगर आप कोई मांगेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं वैसे आपको वहाँ IBBI की साइट से भी मिल जाएगा, तो इसीलिए भी नहीं शेयर करते भाई। वहाँ से जिसको इंटरेस्ट होगा अपने आप डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद आता है जी अपना 11। एक मिनट, हाँ जी। तो अब सॉरी, ये है अब नेक्स्ट केस है स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए। इसमें एक तो पॉइंट ये उठाया गया कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है NCLT और NCLAT के मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, ये इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो है, एक्चुअली ये केस आप देखोगे तो हाई कोर्ट में भी आया था, तो हाई कोर्ट ने कहा था भाई ये सब मैटर्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है। तो स्विस रिबन्स वाला जो केस था, इसमें ये कहा गया कि भाई जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स ऑफ NCLT या NCLAT की, इट इज बीइंग हेल्ड थ्रू सिलेक्शन कमेटी और इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें ये उठाया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है इट शुड बी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तीसरा ये हुआ कि भाई उन्होंने कहा भाई देखो आपने हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बंद कर दी। हाई कोर्ट की तो मैं पता है बड़ी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास क्या जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट यही देख सकता है कि जो रिलीफ ग्रांटेड है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उसकी सेटिस्फेक्शन हाई कोर्ट अभी भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जुरिस्डिक्शन नहीं है हाई कोर्ट की, लेकिन नॉर्मली हाई कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर। तो उसमें ये कहा भाई आपने हाई कोर्ट तो खत्म कर दिया अब, और NCLAT आपने हर स्टेट में बनाया नहीं। पहले तो क्या होता था हर स्टेट में हाई कोर्ट है, या 3-4 स्टेट्स को मिला के हाई कोर्ट बना रखे हैं आपने, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो अब बात हम मानते हैं कि सर्किट ब्रांचेस टू बी एस्टेब्लिश्ड। एक पॉइंट इसमें ये आया कि भाई जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, देयर इज नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज ए क्रेडिटर इज अ क्रेडिटर, ठीक है। अब वो आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द क्राइटेरिया ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, कि भाई आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन आप इफ समथिंग इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है ना, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या कोई डाउन ट्रॉडन है या मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इस तरह से, तो आप उनको भी प्रेफरेंसेस देते हैं ना किसी भी चीज में, राइट्स में। तो इफ एनीथिंग इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया देन इट्स ओके। और यहाँ पर भी क्या है, ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है ना। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होता है और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, इसकी कंडीशन सेम तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड इट नीड्स नो इंटरफेरेंस। तो ये जो क्राइटेरिया ये जो बना रखा है ये ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें उठाया गया, एक कहा गया भाई ये जो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है 29 का, ये भी गलत है। तो इसमें भी ये कहा गया कि भाई ये भी वैलिड है कि आप, क्योंकि 29 जो है 29A आया था इसमें, तो 29A भी हमारा शुरू से ही शुरू हो गया था 1 दिसंबर से ही। तो उन्होंने कहा कि भाई दिस इज ऑल्सो वैलिड एंड इन एलिजिबिलिटी जो 29A में है, इट मे बी ड्यू टू सम अदर रीजंस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो इश्यूज थे इसमें, एक और भी पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं, दीज आर नॉट एडवर्सरियल,
to the corporate debtor. These are actually to help the corporate debtor. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईबीसी है, इट इज ए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन and it is for the benefit of the corporate debtor, and therefore the admission of a company into CIRP cannot be seen from the traditional lens of adversarial proceedings. इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये कि जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं, ठीक है ना। और ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं एनसीएलटी की, दीज आर टू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फ्लेक्सिबिलिटी टू द आईबीसी प्रोसेस, ठीक है भाई। देयर में बी सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आर नॉट कॉन्टेम्पलेटेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एनसीएलटी के पास पावर्स हैं, तो बेसिकली ये। और 29A जो है, 29A भी कहा कि भाई ये जो है, ये कोई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो अपहेल्ड सेक्शन 29A in its entirety whilst reading down the list of related parties who have to be tested for the disqualification under section 29A to those who have a business connection with the resolution applicant। तो उन्होंने कहा जिसका बिजनेस कनेक्शन है नॉर्मली उसी को ही डिस्क्वालीफाई करते हैं, अदरवाइज नहीं डिस्क्वालीफाई करते, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट्स इसके अंदर यही थे, काफी डिटेल्ड ऑर्डर है इसका। हाँ जी सर, एक पॉइंट इसमें अपन वापस डिस्कस कर लें। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर्स वाला है या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही रहने दिया था ना, उसको नीड्स टू बी रेक्टिफाइड वाला थोड़ी बोला था सर। इसका तो इन्होंने माना था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही रहेगा, लॉ एंड जस्टिस में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ था सर। आई थिंक सो इसमें जितने इश्यूज थे नहीं, उसमें ये कहा था कि भाई इन्होंने एक्चुअली यही कहा था कि इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर ऑल ट्रिब्यूनल शुड बी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। However, even today, NCLT and NCLAT are functioning under the Ministry of Corporate Affairs. This again needs to be corrected immediately. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑर्डर में है कि भाई दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। अभी चल वैसे ही रहा है। ओके हाँ अच्छा ओके, तो अभी भी चल वैसे ही रहा है, लेकिन इट नीड्स टू बी करेक्टेड आया था वो करेक्शन। हाँ बिल्कुल आया था। वो मैं आपको पूरी जजमेंट भी भेज दूंगा हाईलाइट करके, उसमें लिखा होता है। क्योंकि इसकी इन माखीजा वाली बुक में जो लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम देयरफॉर द रूल ऑफ बिजनेस हैविंग एलोकेटेड मैटर्स व्हिच अराइज अंडर द इंसॉल्वेंसी कोड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आर मैंडेटरी इन नेचर एंड हैव टू बी फॉलोड। नहीं, ये कहा गया था उसमें, मैं आपको जजमेंट भेज दूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का एंटायर टेक्स्ट है वो भेज दूंगा। हाँ जजमेंट तो मैं निकाल, जजमेंट में आपको क्या करना है, जजमेंट आप निकाल के ना आप कंट्रोल एफ कर लेना उसमें। हाँ, कंट्रोल एफ से मिल जाएगा आपको, एमसीए करके कंट्रोल एफ कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। अगला जी सागर शर्मा एंड अदर वर्सेस फिनिक्स। इस केस में क्या हुआ, इसमें ये कहा कि जैसे ये कोड आया था ना, तो कोड आने के बाद शुरू में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये आईबीसी जो है ना 1 दिसंबर से लगेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड इज होली इररिलेवेंट फॉर ट्रिगरिंग ऑफ एनी लिमिटेशन। मतलब ये लिमिटेशन को रिवाइव नहीं करता। लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा आईबीसी पर, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 1 दिसंबर 2016 के बाद आप 3 साल काउंट करना शुरू कर दो, ये मतलब नहीं है इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड इज होली इररिलेवेंट फॉर ट्रिगरिंग ऑफ एनी लिमिटेशन पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ द कोड। It observed that since applications under Section 7 are petitions filed under the code and do not purport to be an application to enforce any mortgage liability। और एक बात ये भी थी कि इसमें जैसे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 137 लगेगा। तो आर्टिकल 137 में जो पीरियड है वो है 3 इयर्स, जो मॉर्टगेज है उसमें 12 इयर्स है, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जितने भी लोन्स होते हैं उसमें मॉर्टगेज तो होती है, लेकिन मॉर्टगेज वाले प्रोविजंस के हिसाब से लिमिटेशन एक्ट इसमें नहीं लगेगा। अकॉर्डिंगली इट सेट असाइड द जजमेंट अंडर, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात
तो क्या 1 दिसंबर से लगेगा? नहीं, 1 दिसंबर से नहीं लगेगा। लिमिटेशन 2-3 केस लॉज आएंगे इसमें। पहली बात तो ये कि 1 दिसंबर से, ऐसा नहीं कि 1 दिसंबर से एप्लीकेबल, 1 दिसंबर से 3 साल का नया पीरियड शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई डेट 15 में लिया गया था, 15 वाला का 18 ही चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि 1 दिसंबर से आपका 19 तक चलेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें आर्टिकल 137 लगता है। आर्टिकल 137 कहता है उसमें लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स है, ठीक है। और जो मॉर्गेज वाले प्रोविजन इस पर लागू नहीं होते। मॉर्गेज में जैसे 12 ईयर्स का प्रोविजन है वो इस पर लागू नहीं होते। और तीसरी बात इसमें और चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, बोल गया। अकॉर्डिंगली इट सेट असाइड द जजमेंट अंडर अपील एंड डायरेक्टेड दैट द मैटर बी डिटरमिन्ड अफेक्ट। इशू क्या था? इशू बिफोर NCLAT का ये था कि वेदर द क्लेम ऑफ द एपेलेंट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, तो इन्होंने कहा कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजन लगाओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। उसके लिए वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है ना। तो उसके लिए 12 ईयर्स का पीरियड है। नहीं, आर्टिकल 137 लगेगा जिसमें 3 साल का पीरियड है। तो NCLAT की जजमेंट जो मॉर्गेज पर थी, उन्होंने कहा था कि मॉर्गेज वाले प्रोविजन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो नहीं, आर्टिकल 137 लगेगा। अगला केस इसमें आता है। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर 137 में शायद 12 ईयर्स है। नहीं। 7 में 3 ईयर्स है और हाँ 62 में 12 ईयर्स है। हाँ 62, हाँ वो रेफरेंस 61 का दिया गया था एक्चुअली 62। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ। वो 62 का रेफरेंस होना चाहिए, उससे खास बात नहीं है। बट इसमें सर लगेगा शायद, क्योंकि 12 ईयर्स वाला लगेगा क्योंकि वो असाइनमेंट एग्रीमेंट हो गया था। नहीं, NCLAT ने कहा ना जी, ये NCLAT अच्छा। ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 137 ही लगेगा, 3 साल का ही लगेगा। अच्छा, हाँ, ये NCLAT की जजमेंट को ही रिवर्स किया गया ना सुप्रीम कोर्ट वर्ष ने। के लिए। तो NCLAT ने ऐसा कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 137 ही लगेगा IBC वाले मैटर्स में। ओके। अगला केस आता है जी, बाबूलाल वर्धर जी गुर्जर वर्सेस वीर गुर्जर एल्यूमिनियम। इसमें क्या हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सेक्शन 7 एप्लीकेशन। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 7 जो है इट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो वही चीज है, सेम 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द राइट टू अप्लाई एक्रूज, ठीक है। और अगर मान लो डिफॉल्ट जो है इट अकर्ड ओवर 3 ईयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन टाइम बार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो तीसरी बात इसमें ये थी कि टाइम बार्ड एप्लीकेशन में आप जैसे कंडोनेशन ऑफ डिले अप्लाई करते हो, लिमिटेशन एक्ट में हमारे से पास सेक्शन 5 आता है, तो सेक्शन 5 में कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करते हैं। होता है ना, कई बार अपील वगैरह नहीं हो पाई तो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जाती है CIT को या जिसको भी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लगती है। अगर डिले, अनलेस डिले इज कंडोन्ड, तो आपका 3 साल का पीरियड है। और ये नहीं कि भाई अगर डिफॉल्ट 3 साल से पहले हुआ है तो फिर वो जो है फिर एप्लीकेशन विल बी टाइम बार्ड, सेव एंड एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर ऑन फैक्ट द डिले filing may be condoned. Or an application under section 7 is not for enforcing mortgage liability and article 62 of the limitation act does not apply, ठीक है ना। तो आर्टिकल 62 इस पर नहीं लगता। एंड द डेट ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ये इररिलेवेंट है। ये तीनों चीजें सेम सी बातें दोनों में थी। अब इस केस में कहा भी क्या गया था, इसमें था डिफॉल्ट हुआ था आपका जुलाई 8, 2011 को, ठीक है ना। तो adjudicating authority by an order dated August 9, 2018 admitted an application filed in March 18 seeking initiation of CIRP in respect of default that arose on July 8. तो डिफॉल्ट हुआ था 2011 में, एप्लीकेशन एडमिट हुई 2018 में, ठीक है। तो अपील में गए, दूसरी पार्टी अपील में गई। तो अपील में क्या NCLAT ने कहा कि कोड आया 1 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन है विद इन लिमिटेशन पीरियड, ये भी गलत था, ठीक है ना। आपको 1 दिसंबर से 3 साल नहीं गिनने हैं, ठीक है ना, आपको डिफॉल्ट से गिनने हैं। इट फर्दर ऑब्जर्व दैट, इसने ये भी कह दिया कि भाई मॉर्गेज पे 12 साल लगेंगे NCLAT, ठीक है, तो वो भी नहीं था। तो इन्होंने NCLAT ने कहा कि एप्लीकेशन इज विद इन लिमिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इट सेट असाइड द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड NCLAT on the ground that the application under section 7 is barred by limitation, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक्स बताए। बेसिक क्या है? पहली बात तो यह है कि कोड इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, इसमें हम कंपनी की हेल्प करने आए हैं, ठीक है ना।
It is a beneficial legislation intended to put the CD back on its feet, and it is not merely a money recovering legislation. दूसरा, CIRP is not intended to be adversarial to the CD, but it is aimed at protecting the interests of the CD. तीसरा, इंटेंशन ऑफ द कोड इज नॉट टू गिव न्यू लीज ऑफ लाइट टू द डेट्स विच आर टाइम बार्ड. अब 2011 में डिफॉल्ट हुआ था, आप उसकी एप्लीकेशन ला रहे हो 2018 में, ठीक है ना. और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 137. तो 3 साल होगा व्हेन द राइट टू अप्लाई एक्रूज, ठीक है ना. ऑन द ट्रिगर फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय एन FC इज डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द CD, दैट इज द राइट टू अप्लाई अंडर द कोड एक्रूज ऑन द डेट व्हेन द डिफॉल्ट ऑकर्स, ठीक है. और डिफॉल्ट क्या है? एक्चुअल नॉन पेमेंट बाय द CD, जब ड्यू हुआ और जब पेबल हुआ. अगर 3 साल पहले हो चुका है तो एप्लीकेशन टाइम बार्ड हो गई, अदरवाइज आप कंडोनेशन की एप्लीकेशन लेके आओ, ठीक है. और ये दिस इज नॉट फॉर, ये भी बोला है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये जो है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 इज नॉट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी मॉर्गेज लायबिलिटी. मॉर्गेज तो होता ही है लोन में, एंड आर्टिकल 62 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, ठीक है. तो ऐसे ऑब्जर्व दैट द डेट ऑफ द कोड्स कमिंग इनटू फोर्स इज होली इररिलेवेंट. 1 दिसंबर को भूल जाओ, 1 दिसंबर से 3 साल मत काउंट करो आप, ठीक है. So there is nothing in the code to even remotely indicate if the period of limitation for the purpose of an application is to commence from the date of commencement of the code, ठीक है. तो यही है, ये कुछ क्वेश्चन इस पे बना रखे हैं, आप देख लेंगे, खास बात नहीं है उसमें. अगला देखते हैं के शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक. इसमें क्या बोला? इसमें बात ये थी कि जैसे हमें मालूम है पहले CIRP में क्या होता था, 75% मेजोरिटी पे डिसीजन होता था, भाई कंपनी को लिक्विडेट करना है या रिजॉल्व करने का जो डिसीजन है वो 75% मेजोरिटी पे होता था, ठीक है. इस केस में क्या हुआ, 75% का मेजोरिटी नहीं मिली, 66 से ज्यादा मिली, ठीक है. उसके बीच में ये अमेंडमेंट आ गया. NCLT पहले ही लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर चुका था, COC यहाँ पर पहुंच गए दोबारा कि भाई आप हमारी ये लिक्विडेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दो. उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, ये जो चेंज है 75 से ये जो 66 है ये प्रोस्पेक्टिव है. ऐसा नहीं कि आप वाली एप्लीकेशन पे हम दोबारा विचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. तो क्वेश्चन इसमें ये आ गया, वेदर द रेजोल्यूशन प्लान विच कुड नॉट बी अप्रूव्ड बाय 75% and no alternative resolution plan was presented within statutory period of 270 days, liquidation was the only alternative. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, ये कोई दूसरा प्लान नहीं आया, आपका जो अप्रूवल है 75% से नहीं हुआ, तो लिक्विडेशन इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, ठीक है. और COC की बात की तो COC इज द अथॉरिटी टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द कमर्शियल डिसीजंस टेकन एंड नीड्स नो इंटरफेरेंस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, ठीक है. अब जहां तक NCLT की जुरिसडिक्शन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई NCLT को क्या देखना है, NCLT को ये देखना है कि भाई जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के रिक्वायरमेंट्स वो है वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है ना. प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सुपरविजन के लिए क्या प्रोविजन है, वेदर इट इज कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, कोई कंट्रावेंशन तो नहीं कर रहा, ठीक है ना. तो उसको यही देखना है. और कमर्शियल विजडम को जो है चैलेंज करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इफ द COC वर टू रिजेक्ट रेजोल्यूशन, COC ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग ए डिसीजन ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, द सेड डिसीजन वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है. तो 30 सबसेक्शन 2 में अगर कोई ग्राउंड है जिस पे रिजेक्ट करते हैं तो वो दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि NCLT के पास पावर है 30 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करने की, ठीक है. अब जहां तक ये अमेंडमेंट आई है टू सेक्शन 34 इन जून 2018 which introduced the requirement for the COC to consider the feasibility and viability before approval, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज पहले से ही थी, it is a mere restatement of the factors that the COC is expected to take into consideration in any event whilst considering a resolution plan. फिर एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अमेंडमेंट्स हैं टू रिड्यूस द वोटिंग परसेंटेज फॉर अप्रूवल फ्रॉम 75 टू 66 एज वेल एज द रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड रीजंस, दे आर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना. ये नहीं कि भाई पुराने में भी हम 66 वाला प्रोविजन लगा दें, एंड द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द COC प्रायर टू द अमेंडमेंट कैन नॉट बी अंडन, ठीक है. तो उनको हम चेंज
नहीं कर सकते। बेसिकली यही इशू था इसमें। कुछ इसमें पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलो। ये अगला केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है, बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, मान लो उसके पास कोई स्पेक्ट्रम लाइसेंस है, ठीक है, कोई भाई हम आईबीसी कोड का मतलब तो अभी तक समझ ही चुके हैं। आईबीसी कोड का पर्पस क्या है, कंपनी को चलाने की कोशिश करो, ठीक है, अगर चल नहीं सकती तो बेचने की कोशिश करो एज ए गोइंग कंसर्न। अगर एज ए गोइंग कंसर्न भी नहीं बेच सकती तो फिर वो आप उसको सेल कर सकते हो इन पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। यही प्रोविजन है आईबीसी का, बेसिक एम ऑब्जेक्टिव यही है। अब बात यह है, कोई कंपनी के पास स्पेक्ट्रम लाइसेंस है, अब वो आईबीसी में आ गई, आईबीसी में इसीलिए आई कि पैसे नहीं है उसके पास। अब आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर दोगे। अगर लाइसेंस कैंसिल कर दोगे, इन कंपनीज के पास लाइसेंस ही होता है और तो कुछ होते नहीं है सेट्स, ठीक है ना, तो ऐसी कंपनी को कौन खरीदेगा। तो अगर कोई चीज वाइटल है उस कंपनी के लिए तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि दो पार्ट्स में बांट देने ड्यूज को। एक तो पुराने वाले ड्यूज, पुराने ड्यूज का तो आप जिक्र ही मत करो, ठीक है, जो सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट से पहले के थे। आप ये मानो कि करंट ड्यूज वो देता रहे, करंट ड्यूज तो वो दे ही देगा, करंट ड्यूज दे देगा, इसका मतलब उसको स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है ना, यूज हो रहा है मतलब बिलिंग भी कर रहा होगा वो क्लाइंट्स को, फिर तो दे देगा वो, करंट ड्यूज तो क्लियर कर देगा। ये है करंट ड्यूज के लिए तो आप उसको कह सकते हो, लेकिन पुराने के बेसिस पे आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक इंटेंट इसकी ये है इस वाले केस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हैड बाय एन अर्लियर ऑर्डर calculated that a certain sum was due from various telecommunication service providers। इस इसमें इंसॉल्वेंसी में भी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वेदर ड्यूज अंडर द लाइसेंसेस, क्या हम इनको ऑपरेशनल ड्यूज मान सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो टू बी एग्जामिन्ड वेदर ए डेफर्ड डिफॉल्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सपेक्ट्रम एक्विजिशन कॉस्ट कैन बी डीम्ड एज ऑपरेशनल ड्यूज इन एडिशन टू एजीआर ड्यूज। तो एज पर द रेवेन्यू शेयरिंग regime and the provisions of the Indian Telegraph Act, can the dues be said to be operational dues? तो whether natural resources would be available to, एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि भाई ये तो जो है नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स पे आप क्या उसमें वो लगा रहे हो, तो whether natural resources would be available to use without paying the requisite dues, ठीक है, whether doing so can be wiped off by resorting to the proceedings under the IBC and comparative dues of the government and secured creditors। तो क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भाई लेट द एनसीएलटी कंसीडर दीज एस्पेक्ट्स एंड पास ए रीजनड ऑर्डर आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। तो दिस केस वाज रिमांडेड बैक टू एनसीएलटी। तो लेकिन बेसिक इश्यूज, एक ये केस है, एक दो और भी केसेस है, उसमें ये आता है कि चाहे स्पेक्ट्रम में मतलब एनीथिंग विच इज वाइटल फॉर द कंपनी टू सर्वाइव, ठीक है, उस केस में आप उसको दो पार्ट्स में बांट दो, पुराने वाले ड्यूज अलग कर लो सीआईआरपी डेट तक के, उसके बाद वाले करंट ड्यूज अगर वो पेमेंट करता, करंट ड्यूज भी नहीं करता तो ठीक है, आप कैंसिल कर ही सकते हो उसका लाइसेंस, ठीक है। लेकिन अगर वो करंट ड्यूज पेमेंट करता जा रहा है, पुराने वाले ड्यूज के लिए आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप शो कॉज नोटिस इशू करते, ना उसका लाइसेंस आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाइसेंस कैंसिल कर दोगे उस कंपनी को खरीदेगा। क्वेश्चन ये था। अगला आता है के किशन वर्सेस विजय निर्माण। इस केस में क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन अवार्ड हैड बीन पास्ड अगेंस्ट द ऑपरेशनल डेट। इस केस में आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका था। ये केस कल भी डिस्कस हुआ था, सुधांशु प्रकाश जी ने डिस्कस किया था कि के किशन में क्या हुआ था कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है, लेकिन आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद भी अपील का राइट रहता है, हमें मालूम है, ठीक है, और ये फाइनली एडजुडिकेट अपॉन नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आर्बिट्रेशन अवार्ड है जो कि पास हो चुका है लेकिन फाइनली एडजुडिकेट अपॉन नहीं हुआ, अपील के लिए टाइम बाकी है, ठीक है, चाहे अपील की है या नहीं की है, दोनों ही बातें हैं। ऐसा भी हो सकता है अपील अभी उसने की ना हो, उसके बाद टाइम बाकी हो, या तो अपील का भी टाइम निकल गया तब तो सिचुएशन अलग है, अगर अपील का टाइम नहीं निकला तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है, डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बेसिक फंडा इसमें ही है। तो इन दिस सिनेरियो क्या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लग सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं लग सकती। तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कब कब नहीं लगेगी, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका, अपील का टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ, अभी अपील फाइल नहीं हुई, तो भी नहीं लग सकती, क्योंकि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो लास्ट डेट को एप्लीकेशन फाइल कर दे, ठीक है, लेकिन अगर अपील का टाइम पार हो गया, उसने कोई अपील फाइल नहीं करी, तो भी लग सकता है। ये है कहानी। बैकग्राउंड क्या थी,
ट्राइपार्टाइट MOU साइन हुआ विजय निर्माण कंपनी, शीराबाद कंस्ट्रक्शन और SDM प्रोजेक्ट्स। आर्बिट्रेशन इन्वोक हुआ क्योंकि डिस्प्यूट अराइज हो गए। 2 क्लेम जो थे दे वर अवार्डेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, और 3 जो काउंटर क्लेम्स थे दे वर फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल, दे वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ गया, तो एपेलेंट ने एक अपील फाइल कर दी सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 में अपील फाइल होती है, हमें मालूम है आर्बिट्रेशन एक्ट में। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था ये। चैलेंजिंग द अवार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ काउंटर क्लेम फाइल्ड। ठीक है, उस साइमल्टेनियसली दूसरे बंदे ने क्या किया, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो नोटिस वाज सेंट बाय द रिस्पोंडेंट टू KCPL। ठीक है, नोटिस सेक्शन 8 में जाता है, टू पे द अमाउंट ऑफ अवार्ड डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। दिस नोटिस वाज स्टेटेड टू बी ए नोटिस अंडर सेक्शन 8। तो उन्होंने कहा भाई ये जो अवार्ड हमें हुआ है इसके पैसे आप दो, ये सेक्शन 8 का नोटिस उन्होंने इसको माना। तो विद इन 10 days KCPL जो शीरावत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड थी, इसने दे डिस्प्यूटेड द नोटिस स्टेटिंग दैट दिस मैटर वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। भाई अभी तो सेक्शन 34 की हमारी एप्लीकेशन फाइल्ड है, अभी तो मैटर डिस्प्यूट में चल रहा है। तो फाइनली ये पिटीशन वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल कर दी। NCLT और NCLAT दोनों ने ये कहा कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है सेक्शन 238 में, एंड इट विल ओवरराइड द आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो मैटर चला गया अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो 238 वाली जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है ये हर एक्ट में रहती है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जितने भी है ना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट। तो क्या 238 जो IBC वाली क्लॉज है वेदर इट विल ओवरराइड। दूसरी बात ये कि जो डेट डिस्प्यूट है क्या इट मस्ट बी ए बोनाफाइड डिस्प्यूट। तीसरा, क्या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लग सकती है। ठीक है, और किस स्टेज पर माना जाएगा कि डिस्प्यूट है या नहीं। तो सेक्शन 238 के बारे में तो क्लैरिटी है कि ठीक है इट विल हैव इफेक्ट। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मोबिलॉक्स का भी जजमेंट को कोट किया। तो मोबिलॉक्स की जजमेंट क्या थी, मोबिलॉक्स की जजमेंट में भी यही था कि कोई सूट फाइल नहीं हुआ था उसमें भी। ठीक है ना, लेकिन मैटर डिस्प्यूट मान लिया। उन्होंने कहा दिया कि भाई ये नहीं कि वो जरूरी कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही चल रही हो या सूट ही फाइल्ड हो तो ही डिस्प्यूट होगा, तो उसके बिना भी डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो और अनसेंट्रल गाइडलाइंस का भी इसमें रेफरेंस दिया गया कि विच लेड डाउन दैट द डिस्प्यूटेड अमाउंट शैल बी इक्वल टू और ग्रेटर टू द अमाउंट ऑफ डेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन जो कि कब लगेगी। ठीक है, अगर डिस्प्यूट आपका 1 लाख रुपीज से ज्यादा है और कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखने वाला। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है दे विल नॉट मिस यूज द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर नॉमिनल अमाउंट्स ऑफ डेट्स। ठीक है, एंड मोर ओवर द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज ओनली लिमिटेड टू डिसाइड वेदर देयर एग्जिस्ट्स एनी डिस्प्यूट और नॉट। ठीक है, कोर्ट ये नहीं देखेगा डिफेंस इज लाइकली टू सक्सीड और नॉट, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां तक ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात है तो इट हैज ओनली टू बी सीन कि डेट डिस्प्यूटेड है या नहीं है। और जो अगर आपने ये फाइल्ड ए पिटीशन अंडर सेक्शन 34 तो ये तो इसका तो अपने आप ही सबूत है कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है। ठीक है ना, एंड देयर इट डज नॉट एंड हियर बट आल्सो आफ्टर पासिंग ऑफ अवार्ड अप टू फाइनल एडजुडिकेटरी प्रोसेस। तो जब तक फाइनल एडजुडिकेशन ना हो जाए तब तक आप सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो NCLAT की जजमेंट वाज सेट असाइड एंड द अपील वाज अलाउड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अगला केस इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मेटेनेर लिमिटेड। ये क्या केस है, इसको भी देखते हैं। इस केस में बात आ गई कि भाई अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है IBC में जाते कौन है, बैंकर जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये है कि बैंकर का कोई एम्प्लॉई है। ठीक है, एक्स बैंकर है, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे एक्स बैंकर हैं। ठीक है, तो एक एक्स बैंकर है, ठीक है, रिटायर हो गया बैंक से रिटायर होने के बाद इंसॉल्वेंसी ये लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास किया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गए। तो क्वेश्चन ये आ गया कि वो उस बैंक के लिए आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो या नहीं बन सकते। अब कोई कहते यार ये तो बंदा SBI में था पिछले 35 साल से। ठीक है, तो 35 साल से था तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चला गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, आपने आईआरपी चेंज कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन इसको हम प्रेसिडेंट नहीं मान सकते। और सिर्फ इसी बात पे कि कोई आदमी एम्प्लॉय रहा है पुराना, तो ये कोई वो नहीं है कि भाई इससे कोई उसकी इंटेग्रिटी या इम्पार्शियलिटी इफेक्ट होगी, ये हम इस बात को एग्री नहीं कर सकते। ठीक है, केस क्या था? केस ये था कि द सीडी ऑब्जेक्टेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, 1977 से 2016 तक वो उसकी एम्प्लॉय में था एसबीआई। ठीक है, तो वाइल ग्रांटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एफसी टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उन्होंने कहा आप बदल लिया कोई बात नहीं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड दैट द प्रपोज्ड आईआरपी इज अनलाइकली टू एक्ट फेयरली एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडिपेंडेंट एम्पायर। ये एनसीएलटी ने कहा। एनसीएलटी ने कहा कि भाई ठीक है आप बदल लो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रपोज्ड आईआरपी जो है ना, इट इज अनलाइकली टू एक्ट फेयरली। तो ये तो स्टिग्मा हो गया किस्म से, ठीक है ना, ये तो उसकी इंटेग्रिटी पे डाउटफुल हो गया कि भाई वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अब मामला चला गया एनसीएलटी ने। एनसीएलटी ने भी कहा, एनसीएलटी बाय द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उन्होंने कहा अब बदल लो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई आदमी सिर्फ सर्विस में है फाइनेंशियल क्रेडिटर की और वहां से पेंशन ले रहा है, तो इट डज नॉट डिसएंटाइटल हिम टू एक्ट एज द आईआरपी। ये नहीं कि भाई वो आईआरपी उस कंपनी का बन ही नहीं सकता। इट हाउएवर नोटेड दैट द पार्टीज हैव एग्रीड टू सब्स्टिट्यूट द आईपी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आईपी को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, इट शैल नॉट एडवर्सली रिफ्लेक्ट अपॉन द इंटेग्रिटी ऑफ द आईपी कंसर्न। तो मतलब आप उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकते, और इसको आप प्रेसिडेंट भी मत बनाओ, ठीक है, कि भाई उस केस में चेंज कर लिया था तो हर केस में चेंज हो जाएगा, ये कहा। कुछ हाई कोर्ट के केसेस देख लेते हैं। क्या होता है बेसिक, एक देखो यहां थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस हो सकता है, केस की एक थोड़ी सी स्टोरी समझ में आ जाए, उसका जिस्ट समझ में आ जाए, उसके बाद तो आप केस लॉ आराम से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालते हो, मैं तो खुद ही कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, बोलने में कम लगता है। श्री मेटेलिक्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट का केस है, सेक्शन 7 की बात है। सेक्शन 7 में हमें मालूम है कि भाई इसमें कोई एनसीएलटी को दूसरी पार्टी को बुलाना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने क्या देना है कि भाई मेरा ये डेट है, एक तो डेट प्रूव करना पड़ेगा उसको, और दूसरा डिफॉल्ट प्रूव करना पड़ेगा। एनसीएलटी के लिए जरूरी नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट डेटर को बुलाए। अगर पेपर सेल्फ स्पीकिंग है, या मान लो कंपनी के डायरेक्टर जेल में बुलाएगा किसको, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन 7 में ऐसी कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई उसको बुलाना जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन यही उठा कि सेक्शन 7 जो है ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट डेटर को तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि जो सेक्शन 424 है कंपनीज एक्ट का, इट रिक्वायर्स एनसीएलटी एंड एनसीएलटी टू एडहेर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एक तो ये कि भाई नेचुरल जस्टिस तो वो फॉलो करते ही हैं। दूसरी बात, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 पढ़ो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, इट रिक्वायर्स द एनसीएलटी टू असर्टेन द डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोड है तो आप कोड निकाल सकते हो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 देख सकते हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 ये कहता है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall within 14 days of the receipt of the application under subsection 2 ascertain the existence of a default। तो उन्होंने कहा ये जो वर्ड ascertain लिख दिया ना, इसी में सब कुछ आ गया। ascertain का मतलब क्या है? ascertain का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। हालांकि बाद में तो ये है कि भाई रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि अगर आपका सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो आपको इट शैल प्रोवाइडेड दैट इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट असर्टेन्ड, क्या लिखा है सेक्शन 7 में? सेक्शन 7 में लिखा है कि इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट असर्टेन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड पास्ड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5 इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस इन राइटिंग फॉर द सेम। तो अपने रीजंस भी वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सर ये मैटर हाई कोर्ट में कैसे गया? ऐसा होता है, ये हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर लेते हैं कई बार मैटर्स को, देखना पड़ता है। टाइम जो है ना, शुरू में क्या होता है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन से मैटर हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट एंटरटेन कर लेता है, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कोई कमेंट नहीं किया है तो वो भी मान लेता है।
भाई देखा जाए तो एनसीएलटी और एनसीएलटी जो है उसके ऑर्डर्स पे तो कमेंट कर ही सकता है ना हाई कोर्ट। हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या और चीजों पे बचो कमेंट करने से, लेकिन बहुत सारे केसेस जाते हैं, ये सारे जाते हैं एक्चुअली बाय वे ऑफ रिट। क्योंकि क्या है, हमारा आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि भाई कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो आप रिट डाल सकते हो। ऐसे आर्टिकल 32 है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। 226 में ये एप्लीकेशन जाती है सारी, ये सारी बाय वे ऑफ रिट पिटिशन जाती है, ठीक है ना। तो इसमें भी रिट पिटिशन फाइल की थी इन्होंने। रिट पिटिशन में क्या बताया भाई, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है ना, ठीक है सर। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जाते उसी तरह से एंट्री इनकी उसी तरह से होती है। दूसरा है जी कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास ना एक कंपनीज के केस में क्राइटेरिया है। कंपनीज के केस में अगर डायरेक्ट कंपनी, भाई वैल्यूअर कौन बन सकता है, वैल्यूअर इंडिविजुअल भी बन सकता है और एक कंपनी भी बन सकती है। लेकिन कंपनी में कैविएट है, कंपनी के केस में अगर आपकी कंपनी किसी कंपनी की एसोसिएट है, कोई सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, तो वो नहीं वैल्यूअर बन सकती। उसमें एक मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई ये तो जो है ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायोलेशन है ना। हमारा राइट है टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, राइट टू बिजनेस तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये इस पे कंपनी पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो। उन्होंने कहा देखो भाई इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। भाई एक कंपनी के नीचे मान लो 4 कंपनी, आपने लेयरिंग ऑफ कंपनीज कर रखी है, अब उसमें वो कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा वैल्यूएशन के केस में, क्योंकि वैल्यूअर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है ना। तो हमने क्या भाई सीधे सीधे केस में अगर कंपनी है तो कंपनी में तो हम इजीली देख सकते हैं कि भाई इसका कंपनी का उस कंपनी के साथ में सीडी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। लेकिन अगर आप 36 लेयर बना दोगे उसमें, क्योंकि अगर आप सब्सिडरी को कर दोगे सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, फिर तो जॉइंट वेंचर, तो हम कहाँ तक चेक करते रहेंगे उसको, वो हमें चेक करना मुश्किल है। तो हमने यही क्राइटेरिया बना रखा भाई, या तो इंडिविजुअल या कंपनी। लेकिन कंपनी में अगर सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है तो नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में एलिजिबल नहीं है। तो चैलेंज तो ऐसे ही करते हैं कि भाई हमारा राइट टू बिजनेस आप नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन। तो दिस रिस्ट्रिक्शन impairs the right to carry on trade or business, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा कि रूल हैज बीन मेड टू इंट्रोड्यूस हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन वैल्यूएशन इंडस्ट्री, इट ऑब्विएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर बहुत सारे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट आ जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या एसोसिएटेड एंटिटीज हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एज ए सेपरेट क्लास हैज बीन काउंट आउट, ठीक है। कंपनी हो सकती है लेकिन कंपनी के सब्सिडरी जॉइंट वेंचर उसको बंद कर दिया। अगला केस आता है हमारा पास अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक में क्या हुआ बेसिकली, ये इस केस में ये था कि अल्ट्राटेक कंपनी गई थी हमारी CIRP में, और फिर इसको नाथद्वारा ने वो कर लिया था टेक ओवर। ये GST से रिलेटेड केस है। तो इसमें हुआ क्या था, ये अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट थी, पहले इसका नाम था बिनानी सीमेंट। तो अब कहानी क्या हुई, ये बिनानी सीमेंट गई थी CIRP में। अब बिनानी सीमेंट को इसने खरीद लिया अल्ट्राटेक नाथद्वारा ने, ठीक है। GST के कुछ ड्यूज थे, GST वालों ने इनके ऊपर भी नोटिस इशू कर दिया अल्ट्राटेक वाले पे, भाई तुम दो पैसे, ये कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा है इसमें। तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई GST वालों ने कहा कि भाई आप दो पैसे, ठीक है। तो बात ये, एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है, ठीक है, उनको भी कुछ पैसे मिल चुके हैं, GST को भी, उनके पूरे नहीं मिले, ठीक है, शायद 72 करोड़ मिल गए थे उनको, 300 कुछ करोड़ उनके बाकी थे। तो इसमें तो जो कंपनी ने ये कहा कि भाई इसको जो है, इसको तो इतने भी नहीं मिलने थे, लिक्विडेशन वैल्यू में तो इनको 0 मिलना था, ठीक है। जो रेजोल्यूशन प्लान आया, रेजोल्यूशन प्लान में शायद इनको 72 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि इनको जब 72 करोड़ मिल गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई ये दे शुड नॉट एंटर इनटू फ्रिवोलस लिटिगेशन। भाई GST को भी पता है, GST को भी कोर्ट को पढ़ना चाहिए। कोर्ट को आपको जो पैसे मिलने थे मिल गए, आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, ठीक है ना। तो आप जो है दूसरी कंपनी में भी नोटिस इश्यू कर रहे हो, रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो चुका, कंपनी नई बन चुकी,
अल्ट्राटेक नाथ द्वारा बिनानी सीमेंट से, आप उसके ऊपर भी नोटिस इश्यू कर रहे हो, वाई यू शुड गो इन फॉर unnecessary litigation? The court came down heavily on the GST department for pursuing a frivolous litigation and observed, before parting, we would like to express our serious reservation on the approach of the concerned officers of the GST in persisting with the demands raised from the petitioner in gross ignorance of the pertinent statement made by the Honorable Finance Minister and the amendment brought into the IBC. We are of the firm view that the authorities should have adopted a pragmatic approach. A totally frivolous litigation, thereby unnecessarily adding to the overflowing dockets of cases in courts. तो क्या आप बेकार में इधर आ रहे हो, लॉ आपने पढ़ा नहीं है, आपको जो पैसे मिलने थे मिल चुके। अगला केसेस में आता है यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा, इसमें जो पिटिशनर्स थे, दे चैलेंज द ऑर्डर्स ऑफ द एनसीएलटी रिक्वायरिंग ऑल एफसीज टू सबमिट रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द आईयू अलोंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड। क्योंकि वहां पर जो सेक्शन 7 में रिक्वायरमेंट है, ये भी लिखा है कि भाई आप जो है रिकॉर्ड लाओगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, बहुत सारे उसमें बहुत सारी कंडीशन, 7 कंडीशन, ठीक है ना। एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज टू सबमिट सच रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशंस फाइल्ड अर्लियर बट वेटिंग फॉर एडमिशन। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई while both NCLT and NCLAT have been conferred with power to regulate their own procedure, such use of its power is circumscribed and subject to inter alia the principles of natural justice as well as the provisions of the Companies Act 2013 or the IBC, inclusive of regulations. तो उन्होंने कहा जो NCLT हो चाहे NCLAT हो, दोनों को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जहां तक एविडेंस ऑफ डेट की बात है, भाई एविडेंस ऑफ डेट में बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं सेक्शन 7 में। एक कंडीशन उसमें ये भी है कि भाई आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड लाओगे। उन्होंने कहा दूसरी कंडीशंस भी तो पढ़ लो, अगर वो नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन पढ़ो। हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने कहा कि ऑन ए क्लोज ड्यू डिलिजेंस ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अबव इंक्लूडिंग सेक्शन 7 रेड विद रूल 4 ऑफ द एडजुडिक, और फॉर्म 1 पढ़ो आप, उसमें क्या लिखा, रेगुलेशन 8 पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है। तो ये भी कहता है कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के उस पर इंसिस्ट मत करो कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड लाओ, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का। 8 क्लासेस दूसरी भी दे रखी हैं, 8 क्लासेस दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, उनमें से कोई भी ला सकते हो। दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी सोर्सेज दैट एविडेंसेस ए फाइनेंशियल डेट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 3 कैटेगरीज ऑफ एविडेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड आर एज फॉलोज। पहला, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट लाओ, ठीक है, with such information utility, such other record भी लिखा है, evidence और default as may be specified, ठीक है। तो 3 different categories of documents are available to a financial creditor to prove। कोई ये नहीं कि भाई आप information utility का ही रिकॉर्ड लाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये अमेंडमेंट बाद में आई थी, ठीक है, पहले ये इनिशियली नहीं लिखा हुआ था कि सच अदर रिकॉर्ड्स वगैरह। तो जहां तक ये बात है, उन्होंने कहा भाई ये जो अमेंडमेंट आई है ये रिट्रोस्पेक्टिव है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देयरफॉर एनी डेलीगेट लेट अलोन द एनसीएलटी नॉट इवन द आईबीबीआई कैन मेक रेगुलेशंस बाय वे ऑफ द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर और ऑफ सच नेचर। तो बाद में रेगुलेशन भी जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर टू बी अल्ट्रा वायरस द कोर्ट। तो क्वेश्चन इसमें ये था कि भाई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो सेक्शन 7 में कंडीशंस है, हमारे सेक्शन 7 में बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं। तो सेक्शन 7 की जो कंडीशंस हैं वो मतलब उनमें क्या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से ही रिकॉर्ड लाना आपको जरूरी है? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी रिकॉर्ड ला सकते हो, और चाहे एनसीएलटी का ऑर्डर हो चाहे एनसीएलटी का ऑर्डर हो। तो हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर। वो कहता आप इंटेंट देखो लेजिस्लेचर की। अगला आता है टाटा स्टील वाला। टाटा स्टील में क्या कहा? टाटा स्टील में ये है द ट्रायल कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इंडियन पीनल कोड बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट फाइल्ड बाय SFIO। इस केस में क्या हुआ, जैसे भूषण स्टील वाला केस है कि भूषण स्टील को टाटा ने टेक ओवर कर लिया था, कुछ जो डायरेक्टर्स थे उनके अगेंस्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही थी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, ठीक है। तो अब कुछ उसमें कंपनी में जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी नोटिस इशू है।
तो एसएफआईओ ने उनको भी नोटिस इशू किया एंड ट्रायल कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल, ठीक है। तो ये उसी लॉ पर बेस्ड है। द पिटिशनर हैज सबमिटेड दैट इट टुक ओवर द सीडी थ्रू ए रेजोल्यूशन प्लान। इन्होंने कहा भाई हमने तो जो है कंपनी को लिया है, अब क्या होता है 32A क्या कहता है, 32A ये कहता है अगर कोई कंपनी दूसरे ने टेक ओवर कर ली, अगर वो पुरानी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है या पुराने के साथ उसकी कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते, ना उस कंपनी की प्रॉपर्टी को टच कर सकते, ना उस बंदे को टच कर सकते। आप अगर नई कंपनी में भी वही प्रमोटर आगे जो पुरानी में थे, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है, नहीं तो आप प्रमोटर्स के अगेंस्ट में एक्शन लो, कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, या जो नए प्रमोटर्स हैं जिनका पुराने से कुछ लेना देना नहीं है उनके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। भाई भूषण स्टील के प्रमोटर है उनके खिलाफ आप लो जो एसएफआईओ में कर रहे हो आप, ठीक है। तो कंपनी के अगेंस्ट में भी आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो पिटिशनर इसमें ये कहा कि इट टुक ओवर द, किसने कहा, ये टाटा स्टील वाले ने। तो टाटा स्टील ने ये कहा कि मिलॉर्ड मैंने तो ये टेक ओवर कंपनी की है थ्रू रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। और सेक्शन 32A में ये क्लियर लिखा है कि सेक्शन 32A ऑफ द कोड डिस्चार्जेस मी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सीडी वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP। तो CIRP कमेंस होने से पहले के जो भी ऑफेंसेस है उसके लिए नया जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है या कंपनी लायबल नहीं होगी। इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट दिस ऑर्डर विल नॉट इफेक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल प्रमोटर्स, ठीक है। जो पुराने प्रमोटर थे या जो एनी ऑफ द ऑफिसर्स थे जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में करो जो भी करना है आपको, ठीक है ना, लेकिन नए के अगेंस्ट में नहीं कर सकते जब तक वो पुराने के साथ मिले हुए नहीं। ज्योतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ज्योतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये था कि भाई जो कंपनी कोर्ट है while dealing with winding up petition whether they have jurisdiction to stay proceedings before NCLT, ठीक है। कंपनी कोर्ट भी डील कर रहा है और NCLT में भी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो क्या कंपनी कोर्ट को ये पावर है कि जो वाइंडिंग अप पिटिशन से डील कर रहा है कि वेदर दे कैन स्टे द प्रोसीडिंग्स बिफोर NCLT? उसमें ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी कोर्ट को पावर नहीं है, पहले NCLT को हैंडल करने दो। इफ NCLT फेल्स टू रिवाइव और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान कंपनी जज कैन टेक ओवर। ये था इसमें, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। तो कंपनी जज ऑफ हाई कोर्ट हैड स्टेड द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कोड। तो कंपनी जज ने क्या किया, स्टे लगा दिया NCLT की प्रोसीडिंग्स पे जो सेक्शन 10 में शुरू किए गए। सेक्शन 10 में कंपनी खुद जाती है, ठीक है। फाइल्ड बाय ज्योतन इंडिया लिमिटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर PSL लिमिटेड बिफोर NCLT अहमदाबाद, ठीक है। तो ज्योतन इंडिया हैड फाइल्ड ए पिटिशन। इन्होंने क्या किया, ये पुराना केस चल रहा था 2015 का। तो ज्योतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पिटिशनर थी, दे हैव फाइल्ड ए पिटिशन ऑन 10th March 2015 अंडर सेक्शन 433 एंड 434 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ PSL लिमिटेड। इन्होंने कहा कि भाई देखो, कोई भी कंपनी इफ इट इज अनेबल टू पे द डेट, तो आप 433 या 434 की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो इन्होंने ज्योतन इंडिया ने एक एप्लीकेशन लगाई थी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ PSL कि भाई हमने आउटस्टैंडिंग डेट है हमारा 7 करोड़ 25 लाख रुपए का, ठीक है। अब PSL लिमिटेड चले गए BIFR, ठीक है। दे मेड ए रेफरेंस टू BIFR कि भाई हम तो सिक कंपनी है। तो 1 दिसंबर 2016 को ये सिका रिपील हो गया, ठीक है ना। तो सिका अब रिपील होने के बाद में क्या हुआ, साइमल्टेनियसली कोड वाज आल्सो, अब कोड आ गया, ठीक है ना। तो सेक्शन 4B ऑफ द रिपील एक्ट अलाउड ए कंपनी हुज रेफरेंस वाज पेंडिंग बिफोर BIFR टू फाइल बिफोर NCLT, ठीक है। तो अब ज्योतन इंडिया को राइट मिल गया कि भाई NCLT के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 10। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जब ये सिका रिपील हुआ तो इसके 180 डेज का पीरियड हम आपको देते हैं, तो 180 डेज में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, कहां पर, NCLT, ठीक है। तो 1 दिसंबर से पीरियड कितना हो गया, इसके बाद 31 मई 2017। 9 मार्च को कंपनी जज ने क्या किया, कंपनी जज ने जो पिटिशन पेंडिंग थी वो वाली पिटिशन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। ये पिटिशन किसने लगाई थी, पिटिशन लगाई थी ज्योतन इंडिया ने PSL के अगेंस्ट में, ठीक है, जब IBC नहीं आया था, ठीक है। अब इधर क्या है,
आईबीसी का रिपील हो चुका, सी का रिपील होने के बाद में इसके पास पावर आ गई ज्योतिर्न इंडिया के पास, ये अब एनसीएलटी के पास पिटिशन फाइल कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी जज एडमिटेड दी कंपनी पिटिशन एंड पास दी फॉलोइंग ऑर्डर, ये इसने ऑर्डर पास कर दिया। और 29 मई को पीएसएल लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन, तो पीएसएल ने अपनी खुद की वाइंडिंग अप के लिए होता है अभी इनेबिलिटी टू पे दैट सेक्शन 10 में कंपनी खुद जा सकती है, तो इन्होंने पीएसएल ने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, विद इन द विंडो ऑफ 180 डेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रिपील एक्ट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 18 जुलाई जब ये एप्लीकेशन एनसीएलटी में गई तो 18 जुलाई को एनसीएलटी दे रिजर्व द मैटर फॉर ऑर्डर, और उन्होंने कहा भाई ये इसको लिस्टिंग करेंगे 20 जुलाई को। तो बीच में 19 जुलाई को जो कंपनी जज था दे पास एन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द एनसीएलटी, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन। हाँ प्रकाश जी पूछिए, प्रकाश कुकरेजा जी। सॉरी सर, गलती से हो गया, माय बैड, सॉरी। कोई बात नहीं। The learned judge passed an order restraining the NCLT Ahmedabad from continuing with the application and placed the application to be heard on 26th July, ठीक है। तो 20 जुलाई को अपील was filed by PSL Limited challenging the order dated 19 जुलाई, ठीक है। 1 अगस्त को फिर ऑर्डर पास हुआ बाय डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट क्लैरिफाइंग कि भाई जो कंपनी जज है क्या उसको ऑर्डर है कि अपॉन दिस एक्सप्रेस लिबर्टी पीएसएल लिमिटेड विड्रू द अपील, तो पीएसएल लिमिटेड ने जो अपनी अपील फाइल की थी वो विड्रा कर ली। 15 सितंबर को जी प्रेजेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड फॉर रिकॉलिंग वेकेटिंग द ऑर्डर डेटेड 19 जुलाई, तो 19 जुलाई का ऑर्डर किसका था, ये ऑर्डर था कंपनी जज का restraining the NCLT. The order dated 19th July according to PSA Limited was an order in excess of jurisdiction conferred upon a company court and as was liable to be recalled. तो इशू ये था कि क्या कंपनी कोर्ट जो है, कंपनी कोर्ट हैज एनी jurisdiction to stay the proceedings filed by a corporate debtor, ठीक है, even though a previously instituted company petition may have been admitted but where a provisional liquidator has not been appointed. इसमें कई बातें डिस्कस की गई। पहली बात तो ये कही गई कि जो इनिशियल पीरियड है ऑफ अटेम्प्टिंग ए रेजोल्यूशन प्रोसेस इज 180 डेज फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द पिटिशन, ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड, क्योंकि जब सीका रिपील हुआ तो सीका रिपील वाले उन्होंने कहा जो भी केसेस सीका में है ना वो आप एनसीएलटी में ला सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि एनसीएलटी की पावर को उन्होंने सुप्रीम माना कि कंपनी कोर्ट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू रिस्ट्रेन एनसीएलटी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद आईबीसी एप्लीकेशन, ठीक है। और NCLT is not a court subordinate to High Court and hence as prohibited by the provisions of 41B of specific relief act, no injunction can be granted by the High Court against a corporate debtor from institution of proceedings in NCLT, ठीक। तो ये था बेसिकली इस केस में। अगला केस आता है हमारे पास विद्यासागर। विद्यासागर में जैसे ये है कि भाई मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, कम से कम 40-50 एप्लीकेशनें पड़ी हैं पेंडिंग, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। तो वो इसीलिए में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्लॉज है कि भाई यू शुड बी ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन ऑल्सो, मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाएगी, ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ है कि FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट द IP, तो जो भी हमारे फॉर्म होते हैं, फॉर्म में कॉलम होता है वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट और एटसेट्रा। तो इसमें कहा जी ऐसा है कि मेरा तो मिलॉट डिस्चार्ज ऑर्डर इशू होने वाला, तो उनका डिस्चार्ज ऑर्डर जब हो जाएगा तब आप आ जाना व्हेन यू आर एक्विटेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो इस केस में यही था कि कोर्ट सेड कम टू अस अगेन आफ्टर द डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। तो यही है कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब आपने एग्जाम भी पास कर लिया, आपने ट्रेनिंग भी कर ली, फिर भी IBI आपको मना कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अगला केस था इसमें कि लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि अटैचमेंट ऑर्डर की बात है कि अटैचमेंट ऑर्डर का क्या इफेक्ट होगा। अब बात यह है कि जब ये कंपनी आपकी CIRP में आ जाती है
या लिक्विडेशन में आ जाती है। तो लिक्विडेटर को क्या करना है, लिक्विडेटर को लिक्विडेशन एस्टेट बनानी। लिक्विडेशन एस्टेट दिया हुआ सेक्शन 36 में, क्या लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड होगा, क्या नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो दे मे बी एसेट्स विच मे और मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ द लिक्विडेटर, which may or may not be in the possession of the corporate debtor, including but not limited to unencumbered and including but not limited to encumbered assets, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच है, मान लो कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स ऑर्डर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है, आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है, आप दे नहीं रहे, वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, वो बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज करना पड़ेगा CIBC के प्रोविजंस के हिसाब से। अगर आपने कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया हुआ है प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो ना तो उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, वाटरफॉल मैकेनिज्म में सेक्शन 53 के हिसाब से, और जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो भी इनको वेकेट करना पड़ेगा, ये इसमें जजमेंट है मोटा मोटा। अगला केस इसमें आता है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दिल्ली, तो इसमें भी ये आता है कि भाई अब आपका सरफेसी में मान लो कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट रेगुलेशन सच एज RDB एंड दिस सरफेसी है ना, और जो PMLA है, जो कोड है, ये बहुत सारे लॉज हैं, दे मस्ट को एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इट शैल बी कंस्ट्रूड एंड एनफोर्स्ड हार्मोनियसली विदाउट वन बीइंग इन डेरोगेशन ऑफ द अदर। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि जब हमें इंटरप्ले डिसाइड करना होता है, भाई PMLA में भी प्रोसीडिंग चल रही है, RDB में भी प्रोसीडिंग चल रही है, सरफेसी में भी चल रही है, क्या होगा, ठीक। तो उन्होंने कहा देखो हमारे को कहाँ से आंसर मिलेगा, जो ऑब्जेक्शन रीजंस हैं ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो ऑल दीज लॉज आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट फील्ड्स, दे मस्ट कोएग्जिस्ट विद ईच अदर एंड इज टू बी कंस्ट्रूड एंड फोर्स्ड हार्मोनियसली विदाउट वन बीइंग इन डेरोगेशन ऑफ द अदर, ठीक है। तो दिस व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय NCLT मुंबई। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग दैट प्रिवेल्ड विद द SC was that the object and purpose of this legislation being very different from each other, there was no overlap and therefore none of the legislation was in derogation of the other। तो ये नहीं कि भाई IBC के ही प्रोविजंस चलेंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा केस टू केस कि भाई किस तरह से ये होगा। सर जैसे अगर एक IBC की एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है, हाँ, और चेक बाउंसिंग का केस चलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, हाँ, चेक बाउंसिंग में तो अब वो P मोहन राज वाली जजमेंट आ गई ना जी, अभी रिसेंट जो जजमेंट आई है, थोड़े दिन पहले जजमेंट आई, कल भी डिस्कस की थी हमने, वो जो है मैडम ने भी डिस्कस की थी। हाँ ना, वो तो कंटिन्यू करेगा, वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। 138 में कोई बार नहीं है सेक्शन 14 में, ठीक है सर। तो ये जो केस आया हमारे सामने, इसमें क्या कहा कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डेल्ट विद 5 अपील्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ PMLA, ठीक है, अगेंस्ट सिमिलर ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इससे ये पहले ये इसका ट्रिब्यूनल में भी केस चल रहा था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी पहले आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसके बाद में ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो अब ये 5 हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली दे डेल्ट विद 5 अपील्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 42 of the Prevention of Money Laundering Act against similar orders of Appellate Tribunal। तो Appellate Tribunal के ऑर्डर से Prevention of Money Laundering के, इसमें केस क्या था, cases pertain to provisional attachments issued by enforcement officers under section 5 of Prevention of Money Laundering Act। तो such attachment was confirmed by the adjudicating authority, ठीक है। तो बात यह है कि certain properties were provisionally attached by enforcement officers। However, though the properties were held in the names of the owners, but certain entities claimed interest in these properties by way of charge, ठीक है। With these attachments, the right of third parties were affected। The court in the present case has to consider whether the state has the authority to take away and confiscate the property which has been acquired through a criminal activity, as against charge, lien and encumbrances legitimately created। क्या होता है, दो चीजें हैं, दो कंटेंडर्स हैं। पहले एक तो ये है कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ ही लिंकेज है इसका, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई प्रॉपर्टी टेक अवे की,
तो क्या गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है? दूसरी बात ये कि उसी प्रॉपर्टी पर चार्ज भी क्रिएटेड है, तो जो चार्ज क्रिएटेड है उसका क्या होगा? मान लो बैंक ने कोई कार फाइनेंस कर रखी है, अब आप उस कार को फाइनेंस करना, उसको कॉन्फिस्केट करना चाहते हो, तो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हो गए ना। तो इस केस में क्या हुआ कि भाई मान लो कोई कार है किसी के पास, ऑडी कार है, ठीक है, तो ऑडी कार वाज अटैच्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब एक्सिस बैंक ने कहा भैया ऐसा है, मेरे पास हाइपोथेकेटेड एक कार ही है ना, तुम कह रहे हो हम इसको कॉन्फिस्केट करेंगे, मेरे हाइपोथेकेशन का क्या होगा? ठीक है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इट्स एक्विजिशन बाय द सेट रजिस्टर्ड ओनर। तो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑडी कार वाज इंटरसेप्टेड और उसमें बहुत सारे डिमोनेटाइज्ड करेंसी मिली उस कार में से, ठीक है, पुराने नोट मिले 3,70,00,000 रुपए के। तो इन द इन्वेस्टिगेशन दैट एंश्योर्ड द ओनर ऑफ द कार्स, उन्होंने कहा भाई इसका तो काम ही यही है, ये जो है, ही वाज फाउंड टू बी हैव इंडल्ज्ड इन एक्ट्स टू कन्वर्ट अनअकाउंटेड डिमोनेटाइज्ड करेंसी बाय डिपॉजिटिंग इन फ्यू फिक्टिशियस कंपनीज, कि वो दिखाता था भाई अनटिंटेड मनी है, ठीक है। जैसे पहले होता था ना भाई, कंपनीज में हम बैंक बैलेंस दिखा देते थे बहुत पुरानी कंपनीज में, जैसे बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज है, कैश इन हैंड रहता था। हाँ सर, ये कृष्णा दोंडा जो है उनका वीडियो चालू है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, आप भी को होस्ट है, आप भी उनको बंद कर सकती हैं। अच्छा, हाँ ओके। और क्या, एक्चुअली क्या होता है वो ना, कई बार उनको ध्यान नहीं रहता। स्टॉप वीडियो कर सकते हो, हो गया होगा। हाँ, तो अब इसमें ये देखा कि भाई ये जो है, ये बंदा तो इसी काम में एंगेज्ड है, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक वाले भी पकड़े गए, एक्सिस बैंक का केस पेपर में भी आया था। तो इन्फॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और प्रोविजनल ऑर्डर इशू किया, जिसमें कहा भाई ऑडी कार को अटैच कर लो, ठीक है। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने दे सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्मिंग द अटैचमेंट ऑर्डर। उन्होंने कहा भाई बैंक को दो, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको डिस्पोज ऑफ करेगा और अपना बैलेंस जो है ये रिकवर करेगा ड्यू टू इट अंडर द लोन कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंटिंग आउट इंटरफेलिया कि जो लोन फैसिलिटी है ये तो प्रीडेटेड है भाई, जब लोन दिया था तब तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा था ना बंदा ये, ठीक है ना। तो द लोन फैसिलिटी प्रीडेटेड द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द फाइनेंसर यूज्ड फॉर इट्स एक्विजिशंस नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है ना। तो लेंडर के पास फर्स्ट प्रायोरिटी है, चार्ज है ओवर हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी। और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, इट वाज नॉट टू डिट्रैक्ट और डेरोगेट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट्स एज अफोर्डेड बाय लेजिस्लेशन, ठीक है भाई। कोई सरफेसी एक्ट में या आरडीपी एक्ट में कोई चीज अगर किसी के पास राइट है तो आप उसको उस राइट को डेरोगेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये कहानी थी। दूसरी अपील में क्या था, एसबीआई ने कुछ लोन दे रखा था, कुछ डायग्नोस्टिक मशीनरी थी, ठीक है, और ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड थी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स। लोन वाज नॉट रिपेड एंड एसबीआई ऑब्टेन्ड रिकवरी सर्टिफिकेट। अब इस केस में डीआरटी पे चला गया एसबीआई ने वहां से रिकवरी सर्टिफिकेट ले लिया। अब इट वाज नोटिस दैट इनवॉइसेस एंड रिसीट्स प्रेजेंटेड वर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स और एसबीआई ने इसमें एफआईआर लॉन्च कर दी। इन्फॉर्मेशन वाज कन्वेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख के उन्होंने क्या किया, दे अटैच्ड एसेट्स ऑफ बोरोवर्स एंड गारंटर्स व्हिच वर सब्जेक्ट टू मॉर्गेज। एसबीआई की मॉर्गेज पहले से ही थी। तो ऑन एन अपील बाय एसबीआई, appellate authority held that neither the bank nor its employees being alleged to be involved in money laundering, the amount of loan bank was entitled to recover। तुमने कहा भाई सारे चीज साथ साथ चलेगी। अब इधर आप कॉन्फिस्केट कर रहे हो, उधर बैंक करने कुछ लोन दे रखा है, बहुत सारी चीजें आप देख करके, तो ये कहानियां बहुत सारी हैं इसमें। पीएनबी ने भी लोन दे रखा था। तो इशू ये आ जाता है भाई, कोई केस अगर एसआर उसमें चल रहा है सरफेसी में या आरडीपी में, तो होगा क्या, ये इसी के ऊपर ही जजमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो काफी डिटेल्ड ऑर्डर है और इसमें जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था, इट सेट असाइड द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो हाई कोर्ट ने ये कहा भाई आप ये भी देखो, टेंटेड प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, जो प्रॉपर्टी पहले एक्वायर्ड है, ठीक है भाई। ऑडी कार जो है, कार आपने कैसे एक्वायर की थी, ऑडी कार भी क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है, तो वो चीज देखो। तो कौन सा लॉ सुप्रीम करेगा, ऑल लॉ विल कोएग्जिस्ट, ठीक है ना, और उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो इट डज अपीयर दैट द एसेट्स व्हिच हैव बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अटैचमेंट इन द अपील्स एट हैंड आर नॉट टेंटेड प्रॉपर्टी। तो वो देखना है कि वो टेंटेड प्रॉपर्टी है
या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ, ठीक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, ये नहीं कि सारा कुछ ही कॉन्फिस्केट कर लोगे उसको। बैंकर का तो बैंकर को पहले राइट दो, बैंकर अपना लोन रिकवर करके उसके बाद में फिर कॉन्फिस्केट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है जी। तो आपको देखना है कनेक्शन है नहीं है, क्या है क्या नहीं, ठीक है जी। तो बाकी फिर कल करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल हाईकोर्ट वाले कवर हो ही गए पूरे, है ना। इसके बाद अब NCLAT और NCLT 1 या 2 दिन में इसको भी कवर कर लेंगे। और इसके ऊपर जो भी कुछ आपका क्वेश्चन हो, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो आप मुझे